Namaskar. Welcome friends. Very good morning. Good morning to all of you. Myself Dhiren Kumar, Assistant Professor, Buddha Institute of Technology, Gida, Gorakhpur. Today we are going to study a very interesting subject, that is machine design. In this semester we are only focusing on machine design first, because machine design is very vast subject. That's why we are going to study in both the semester. Like this is fifth semester, we are going to study machine design first, and the next semester we are going to study machine design second. Machine design, we all are engineer and we have to go through the machine design subject very clearly, because we are going to design machine after our graduation. Today is only introductory class about the machine design. Machine design, first a little definition of the machine design, that is machine design is nothing but creating new machine or modification of existing one with the help of engineering formula. Dot that line. With the help of engineering formula that we have studied in our 4-year BTech course in the economical ways. We will see the definition clearly after this lecture in the video number 2. But before going to start machine design, there is some prerequisite subject that we have to know. Subject prerequisite. Prerequisite means we have to know this subject that we are going to mention afterward. This subject before going to the machine design. If I am studying, if you are studying machine design, then you have to know little bit or more knowledge about the subject, and the subjects are strength of material, strength of material. We also know in the short form SOM. We already discussed SOM in our second year. सेकेंड ईयर में हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये प्री रिक्विजिट क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए मशीन डिजाइन पढ़ने के लिए. दिस इज फॉर बोथ मशीन डिजाइन फर्स्ट एज वेल एज मशीन डिजाइन सेकेंड. अगला क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको this subject we already discussed in either first year or in the new syllabus we studied in second year. फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. थर्ड हमारा क्या है, मटेरियल साइंस. थर्ड वन इज मटेरियल साइंस. Material science is itself a vast subject, और इसको हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं. सेकेंड ईयर में इसको हम लोग मटेरियल साइंस को पढ़े हैं. एंड थ्योरी ऑफ मशीन, याद होगा सबको थ्योरी ऑफ मशीन. Machine is short form for machine, that is popularly known as TOM. Earlier in the BTech syllabus, we studied TOM 1 and TOM 2, but after revision of the new syllabus,
we only study theory of machine as a whole. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग को ये यहाँ पे इसका नॉलेज होना चाहिए टोम का। ठीक है, टोम इसको हम लोग डायनेमिक्स ऑफ मशीन या काइनेमेटिक ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं। अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से होगा, डायनेमिक्स ऑफ मशीन या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग टोम को। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये हम लोग जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ ड्राइंग सीखते हैं। ठीक है, और इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मशीन डिजाइन। ये सब इम्पोर्टेंट है, बट आफ्टर द theoretical calculation we have to design our machine with the help of engineering drawing. Got it? हाँ, ये टोम को हम लोग थर्ड ईयर में ही पढ़ते हैं। पैरेलल टू मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन के साथ साथ हम लोग इसको पैरेलली थ्योरी ऑफ मशीन को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी बिफोर गोइंग टू स्टडी मशीन डिजाइन आई एम एज्यूम दैट you all are go through this subject, और ये सब मिला के क्या बनता है मशीन डिजाइन। यानी हम लोग को इतने की नॉलेज होनी चाहिए, आइदर पार्शियली और फुली। ठीक है, अगर पार्शियली होगा देन वी आर ऑलरेडी हियर, हम लोग रिवाइज करते हुए इसको सिलेबस को खत्म करेंगे। अगर आप लोग फुली करते हैं तो फुली अगर आपको पता होगा तो ये हमारे आसान हो जाएगा मशीन डिजाइन को समझने के लिए। ठीक है, आगे बुक्स, कौन कौन सी बुक्स हम लोग को चाहिए? बुक्स कौन कौन सी बुक चाहिए? फर्स्ट बीबी भंडारी, ईएमएच का है ये, ईएमएच पब्लिकेशन टाटा मैकग्रा-हिल का। ठीक है, इट इज स्टैंडर्ड बुक। सेकंड आरएस कुर्मी, ये हमारा एस चांद, शायद ये पब्लिकेशन एक बार देख लीजिएगा, एस चांद पब्लिकेशन का ये। ठीक है, आरएस कुर्मी पे यहाँ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा बिकॉज फॉर एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं आरएस कुर्मी से। ओके, बीबी भंडारी इज स्टैंडर्ड बुक, बोथ आर गुड बुक्स। देन आरके जैन, पन्ना पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों बुक हम लोग के स्टैंडर्ड बुक होंगे। और भी बुक्स है हमारे पास, लेकिन हम लोग को अपने एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से आगे चलना है। तो कौन कौन से बुक आप लोग परचेस करेंगे? बीबी भंडारी, ईएमएच का, आरएस कुर्मी, शायद ये चांद का है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आरएस कुर्मी मशीन डिजाइन एंड आरके जैन मशीन डिजाइन खन्ना पब्लिकेशन का, आरके जैन मशीन डिजाइन खन्ना पब्लिकेशन का। ठीक है, तो these three books are for our machine design. These books included machine design first as well as machine design second. Means you need not to be purchase second books for second semester. Means six sem के लिए हम लोग कोई बुक नहीं खरीदनी है। क्या करना है? भंडारी लेना है, उसी में पूरा सिलेबस है। आरएस कुर्मी लेना है, एहसान पब्लिकेशन एंड आरके जैन खन्ना पब्लिकेशन, तीनों में से कोई भी एक बुक लेंगे। उन तीनों उस बुक में दोनों सेमेस्टर मशीन डिजाइन फर्स्ट एंड मशीन डिजाइन सेकंड दोनों कैरी आउट होंगे। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात और सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो मशीन डिजाइन के साथ है, हम लोग को डाटा बुक प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम के लिए। बच्चे इसी से खुश हो जाते हैं कि डाटा बुक मिल रहा है, चलो वहां से पास हो जाएंगे। तो डाटा बुक के लिए
हम लोग कौन कौन डाटा बुक प्रेफर कर सकते हैं? एक बीबी भंडारी, ये भी नया डाटा बुक है, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलर जो है डॉक्टर साधु सिंह, ठीक है। साधु सिंह हमारा खन्ना पब्लिकेशन का है और ये टीएमएच का है, ठीक है। डॉक्टर साधु सिंह और बीबी भंडारी, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेंगे, लेकिन ये दिमाग में रहे कि कोई भी बुक जो लेंगे उसको शुरुआत से अपने साथ रखेंगे। एग्जाम में क्या होता है बच्चों के साथ कि एग्जाम में डाटा बुक वो लोग खरीदते हैं और एग्जाम के बाद वो भूल जाते हैं। यानी हम लोग को इसके गो थ्रू होना पड़ेगा पूरे सेमेस्टर, ठीक है। ये हम लोग को बड़ा हेल्प करता है एग्जाम में ये हम लोग को पास भी कराता है, टॉप भी करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मशीन डिजाइन इज द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग, आवर 4 year इंजीनियरिंग कोर्स। दैट्स व्हाई वी आर पास और टॉप विद द हेल्प ऑफ बीबी भंडारी और डॉक्टर साधु सिंह, ठीक है। दोनों में से कोई एक डाटा बुक लेंगे हम लोग और उसको थ्रू आउट ईयर स्टडी करें। क्योंकि क्या होता है, दिक्कतें कहाँ आती है, नोटेशन में दिक्कत होती है। इफ यू आर गोइंग थ्रू आर.एस. खुरमी मशीन डिजाइन बुक and you are going to BB Bhandari data book, then there is a notation problem. Say for example, अगर हम लोग अल्फा की बात करें, कोई एक एंगल अल्फा है, तो अगर अल्फा नोटेशन हमारा आर.एस. खुरमी में दिया है तो भंडारी में हो सकता हो वो फाई दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को लॉट ऑफ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, यानी हम लोग को प्रैक्टिस करेंगे तो ही यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, मशीन डिजाइन फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, एंड मशीन डिजाइन आर.एस. खुरमी का बुक लेंगे, बीबी भंडारी का बुक लेंगे या आर.के. जैन की बुक लेंगे। थर्ड यहाँ पे डाटा बुक बीबी भंडारी और डॉक्टर साधु सिंह। याद रखें, प्लीज कीप इन माइंड, साधु सिंह में जो पिछला पब्लिकेशन था उसमें कुछ के नहीं थी, लेकिन जो रिवाइज पब्लिकेशन है उसमें हम लोग को फुल डाटा बुक में फुल जानकारी होंगी, इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सिलेबस के बारे में, स्पेशली मशीन डिजाइन फर्स्ट की सिलेबस में, ठीक है। तो मशीन डिजाइन फर्स्ट में हम लोग का सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये यूनिट 1 में क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग एमडी मशीन डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अभी मशीन डिजाइन के डेफिनेशन देखे थे। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। वो भी कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिएटिंग ऑफ न्यू मशीन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन with the help of engineering formula that we already study or we are going to study in our 4 year engineering program in the economical ways। यानी जब तक इकोनॉमिकल नहीं होगा हम लोग कोई भी मशीन नहीं बना सकते, ठीक है। विद हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग फॉर्मूलाज एंड डिफिनेशन, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लोग मशीन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इसमें हम लोग को डेफिनेशन जानना होगा, ठीक है। मटेरियल साइंस, इसमें हम लोग डिजिग्नेशन देखेंगे आईएसओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिजिग्नेशन देखेंगे कार्बन स्टील, डिजिग्नेशन फॉर व्हाट, कार्बन स्टील, ठीक है। और डिजिग्नेशन देखेंगे एलॉयज, एलॉयज की डिजिग्नेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रीफर्ड नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अगले लेक्चर में। प्रीफर्ड नंबर देखा जाएगा, प्रीफर्ड नंबर क्या होता है,
अब इन सब के लिए हम लोग को मटेरियल साइंस का नॉलेज होना जरूरी है। We already discussed before going to machine design, we have to know strength of material, engineering mechanics, material science, theory of machine, and engineering drawing. These are the prerequisite subjects, and here we see that from our beginning of the lecture, first lecture, इंट्रोडक्शन से ही हम लोग को मटेरियल साइंस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या है हमारा, फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पार्ट में है स्टैटिक लोडिंग का डिजाइन। ठीक है, इस स्टैटिक लोडिंग के लिए हम लोग एक मटेरियल स्पेसिफिक पे स्टैटिक लोडिंग अप्लाई करेंगे और फिर उसको डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम लोग को सोम की जानकारी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, रिलेट करते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है, किस किस सब्जेक्ट का जानकारी हम लोग को यहाँ पे यूज होगा। यूनिट नंबर 1 यहाँ 2 भाग है, इंट्रोडक्शन चूंकि छोटा यहाँ पे टॉपिक हो रहा था, तो यहाँ पे स्टैटिक लोडिंग एक अलग टॉपिक इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग 1 से 2 लेक्चर में खत्म करेंगे और स्टैटिक लोडिंग के लिए 3 से 4 लेक्चर जरूरी होगा। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फ्लक्चुएटिंग stress. Here we are going to study fatigue, failure, Gerber criteria, Goodman criteria and all these. इसके लिए हम लोग को सोम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम रिलेट करते जा रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट को हम लोग को पहले जानना चाहिए। ये हम लोग को पहले से पता होगा तो इसके बारे में जानने में आसानी होगी। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है रिवेट और रिवेटेड जॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे न्यू है, यानी इसके लिए हम लोग को मशीन डिजाइन की सहायता है। यानी और जो सब्जेक्ट अगर आप पढ़े हो ना पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए नया है, रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। साफ, यानी हम लोग साफ की डिजाइनिंग करेंगे। यूनिट नंबर 3 में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिजाइन साफ्ट, और साफ्ट में इसके लिए हम लोग सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सहायता से डिजाइन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वेयर here we are going to recall our MISA equation, m by I sigma by y and E by R। जो लोग सोम पढ़े होंगे इस फॉर्मूले से फेमिलियर होंगे, ये MISA इक्वेशन एंड ER। ठीक है, ऐसे हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला है, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ पे हम लोग कीज एंड कपलिंग देखेंगे। ये यहाँ पे न्यू है, यानी इसके लिए हम लोग के लिए कोई प्रीरिक्विजिट सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहली बार पढ़ेंगे कीज एंड कपलिंग के बारे में। एंड लास्ट यूनिट नंबर 5, पावर स्क्रू। ठीक है, यहाँ पे पावर स्क्रू देखेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग अपने
एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लोग मशीन डिजाइन के बारे में। मशीन डिजाइन का एक छोटा इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन? स्टार्टिंग फ्रॉम आवर वेरी बिगिनिंग डेफिनेशन ऑफ मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन इज नथिंग बट design of or creating of design of new machine or modification of existing machine with the help of engineering formulas or engineering theories, with the help of engineering theory, ब्रैकेट में फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला खत्म नहीं होता है, डेफिनेशन खत्म नहीं होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये लगाएंगे, इन द इकोनॉमिकल मैनर। इन द इकोनॉमिकल मैनर, ये लाइन याद रखेंगे। अगर कोई भी हमारा प्रोजेक्ट, हमारी मशीन that we are going to design are not economical, then why is the people going to buy this machine? इसलिए हम लोग को ये इकोनॉमिकल तो होना ही चाहिए। और इंजीनियरिंग थ्योरी की सहायता से, दो वी आर स्टडिंग इन बीटेक and we are all go through engineering subject in our 4-year subject, 4-year time. We have to study our engineering theories, different engineering theory। यहाँ पे जो हम डिस्कस किए थे सोम में, सोम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट के जो थ्योरीज हैं, ठीक है, इनकी सहायता से हम लोग मशीन डिजाइन करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक अगर हम लोग को से फॉर एग्जांपल इस चेयर का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर ये चेयर को डिजाइन करना होगा तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आएगा? मान लीजिए हम लोग से वी आर इंजीनियर, वी आर गोइंग टू इंजीनियर इन आवर नेक्स्ट ईयर and one said that design this chair। तो सबसे पहले आप क्या डिजाइन करेंगे, क्या सोचेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फैक्टर नीड टू बी कंसीडर, फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर डिजाइन ऑफ चेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स need to be considered, यानी जो डिफरेंट फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे उसको कंसीडर करना होगा। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स क्यों हम लोग ये चेयर डिजाइन करें, ये एम होना चाहिए। वी go in our when we are going to start our next video, we are study in detail, but here it is only introductory part, that's why we are going to know design of chair। First, factors need to be considered। Second, purpose for which the chair is to be designed। purpose क्या है? Second, purpose
for which chair is to be designed. ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है, इसलिए हम लोग चेयर डिजाइन करेंगे, आराम से बैठने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये पर्पस क्लियर होना चाहिए, ये पर्पस क्या है चेयर डिजाइन करने का। ठीक है, उसके बाद थर्ड, किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसके लिए, ग्रोन है और चाइल्ड है। आप लोग मार्केट में गए होंगे, देखे होंगे कि वहां पर जो चेयर्स है वो ग्रोन के लिए भी अलग है। मान लीजिए बूढ़े हैं तो बूढ़ों के लिए अलग चेयर है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अलग चेयर है। ठीक है, वहां आप बच्चों के लिए देखेंगे छोटा चेयर है, ग्रोन के लिए बड़ा चेयर है। ठीक है, आजकल तो इतने रिसर्च और टेक्नोलॉजी की बात हम लोग देख रहे हैं, हैंडीकैप्ड के लिए अलग चेयर हो रहे हैं, ओल्ड एज के लिए अलग चेयर हो रहे हैं। तो ठीक है, इसके हिसाब से किसके लिए डिजाइन करना है ये पर्पस भी क्लियर हो सकता है। बच्चों के चेयर पे कोई बड़ा नहीं बैठेगा। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात हम लोग कम रखते हैं, हाइट छोटी होती है, इसलिए हम लोग के लिए ये पता होना चाहिए कि किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये बात लगे किसके डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल कौन से यूज करेंगे, मटेरियल्स यूज, इसके लिए हम लोग को नॉलेज होना चाहिए मटेरियल साइंस का। ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, मटेरियल में हम लोग आइदर प्लास्टिक का यूज करें या फोम का यूज करें या लोहे का यूज करें, आयरन का यूज करें, स्टील का यूज, ऑब्वियस जो भी आप लोग को पसंद हो वो यूज करिए, लेकिन इट शुड बी एंड इट शुड हैव अ स्ट्रेंथ, इसके पास एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा जॉब है हमारे लिए। हम लोग कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा क्या मटेरियल यूज। फोर्थ, चौथा क्या हमारा, एस्थेटिक फॉर द डिजाइन ऑफ चेयर। एस्थेटिक नया वर्ड है या बहुत लोग इससे फेमिलियर होंगे। एस्थेटिक फॉर डिजाइन ऑफ चेयर। ठीक है, क्या एस्थेटिक होना चाहिए, यानी वो बैठेगा, हो सकता है उसको झुकने का मन कर रहा है पीछे, तो क्या करेगा, रिवेट लगा के या स्प्रिंग लगा के उसको हम लोग क्या करेंगे, स्लो करा देंगे। कंपनियों में आप लोग देखे होंगे एस्थेटिक, अगर वहां बुजुर्ग है, बूढ़ा है तो उसके लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, या वो हैंडीकैप हो तो उसके लिए डिजाइन क्या होगा, यानी डिजाइनिंग हम लोग पर्सन टू पर्सन चेंज कर सके। ये हमारा क्या है, एस्थेटिक फॉर डिजाइन ऑफ चेयर, यानी हम लोग को इसको भी ध्यान देना पड़ेगा बाय डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, क्या क्या, टुडे इज ओनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर। वी नो द definition of machine design, which is creating a new machine or modification of existing one with the help of engineering formulas and theory in the economical manner। ठीक है, इकोनॉमिकल मैनर में ये होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहते देखिए, बुक्स देखें, बुक्स में कौन कौन सी है, बुक्स आर एस कुर्मी, विवी भंडारी एंड आर के जैन, कोई सी देख लीजिए, दोनों सेमेस्टर के लिए सेम है। और दो इट इज मशीन डिजाइन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, so the university allow us to use machine design data book। तो मशीन डिजाइन डाटा बुक के लिए कोई भी लीजिए, लेकिन वो लीजिए तो पूरे ईयर उसी का यूज करिए, विवी भंडारी और डॉक्टर साधु सिंह। एंड देन वी ऑलरेडी स्टडीड द सिलेबस ऑफ द मशीन डिजाइन फर्स्ट ओनली, मशीन डिजाइन सेकंड हम लोग 6th टर्म में पढ़ेंगे। एंड हियर वी टेक एग्जांपल ऑफ डिजाइन ऑफ चेयर। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर नीड टू बी कंसीडर। ये सबसे पहले फैक्टर कौन कौन से होंगे, पर्पस फॉर व्हिच चेयर इज टू बी डिजाइन,
ग्रोन और चाइल्ड, यानी किसके लिए हम ये बना रहे हैं, मटेरियल यूज, कौन से मटेरियल यूज करेंगे, एनलार्ज एस्थेटिक फॉर डिजाइन ऑफ चेयर। ठीक है, तो ये हम लोग की डिफरेंट क्राइटेरिया है। वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि मशीन डिजाइन के लिए क्या क्या पर्पस है, और वहां पे हम लोग डिटेल में और स्टडी करना शुरू करेंगे। टुडे इज ओनली इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सो वी आर गोइंग टू इंडिया। थैंक यू।